Hey viewers, I'm Soumya Srijena. I'm a biology educator and I usually teach botany students of the graduation. So everyone knows about the NEP, which is new education policy applied on the graduation and along with other courses also. So मैं NEP के according जो जो botanies के syllabuses हैं वो मैं series में cover करने वाली हूँ. So here we are with the first topic, which is from the second semester botany, that is the fungi. Everyone knows what is fungi because हम bread हो रोटी हो एक दिन भी रख दे तो नेक्स्ट डे अगर हम उसे फ्रिज से बाहर रख रहे हो तो it will be infected by any kind of fungus, bacteria, or anything. So here we are with the topic that is called fungi, which is the hidden kingdom beneath our feet. Why this name I have chosen? Because ऐसे भी फंगस है जो कि हमें दिखाई तक नहीं देते हैं और जो कि हमेशा से बहुत पुराने सालों से अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं एंड इट विल bloom up like a mushroom. So here what we are going to study in this session. First, we are going to study about what is the fungus. Fungus क्या है? Usually फंगस का पूरा डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग कि what is actually fungi. वो फंगस कहाँ से आया है? ओके. नेक्स्ट देखेंगे कि what is its status in the kingdom classification. Everyone knows कि three kingdom classifications are there. So we are going to study from which kingdom classification this new division or new kingdom has came from. And lastly, we are going to analyze about its thallus organization. That means about its body structure. Okay, so let's start. Actually, what is fungi? Everyone more or less know about this. Like this, अगर हम ब्रेड को रख दें तो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखेंगे तो हम बोलते हैं कि ये ब्रेड खराब हो चुका है और इसमें फंगस लग गया है. ठीक है, तो फंगस को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए यूनिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर achlorophylous heterotrophic organisms which can be found in variable forms and behaviors. हम अगर बच्चों देखें कि ए क्लोरोफाइलस एक फंगस क्या होता है. ए क्लोरोफाइलस, अगर तुम लोगों को पता है कि ए क्लोरोफाइलस क्या होता है, दैट मीन्स इट डोंट हैव एनी क्लोरोफिल. It don't have chlorophyll pigment. So chlorophyll pigment क्या होता है? Chlorophyll pigment बच्चों प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि यूजुअली हेल्प करते हैं टू रिसीव द सनलाइट एंड इन फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और फूड प्रिपेयर करने में, जिसको कि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें यूज होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो होता है क्लोरोफिल. तो जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ही खाना बना सकते हैं, सबको पता है. तो एज बिकॉज फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है तो हम उसको बोल दिए कि दे आर ए क्लोरोफाइलस. एंड ए क्लोरोफाइलस जो लोग होते हैं तो वो तो खुद खाना नहीं बना सकते, तो डेफिनेटली दे विल डिपेंड अपॉन सम अदर ऑर्गेनिजम्स. And those organisms who depends upon another organisms to live or to absorb their food, they are called as heterotrophic organisms. And ये जो fungus है, they can found in very variable forms, like it can be circular, it can be spherical, it can be elongated structure, it is filamentous. There are multiple forms. Some like we can see mushrooms very easily. They are different sizes. And some fungus we cannot even see. हमारे nails में present हो सकते हैं, hairs में present हो सकते हैं. तो फंगस बहुत सारे varieties में present हो सकते हैं. उनका behavior different हो सकता है. कुछ लोग अच्छे फंगस होते हैं जो कि हमारे यूजुअली बहुत सारे ब्रेड्स बनता है. देखे होंगे कि
फैक्ट्रीज में यूज होता है, फर्मेंटेशन में यूज होता है। तो फंगस मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। नेक्स्ट वन we can see they are eukaryotics. Everyone know eukaryotic means it is a highly developed organism और जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, जिनके बॉडीज में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक आवर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, दोज आर प्रेजेंट। सो इन फंगस आल्सो, बस उनको खाना बनाना नहीं आता, बट every eukaryotic organisms can have all the developed organelles. Okay, and as I have said before, it contain a thallus body और thalloid body। जिनके पास कोई भी रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि इनका बॉडी में कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनके पास खाली थैलस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे कि ये फंगस वर्ड कहाँ से आया है बच्चों, इट केम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कॉल्ड फंगस, जिसमें कि फंगस का मीनिंग उन लोगों ने क्या बोला था कि मशरूम। लैटिन में फंगस मतलब मशरूम, तो यूजुअली उसको क्या कर दिए कि इट केम और इट हैज बीन मेड लाइक कि मशरूम्स एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है फंगाई किंगडम का, तो उसके नाम से ही पूरा किंगडम का हम लोग क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। तो इट इज देयर थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट वन अगर हम देखें कि ग्रीक में एक वर्ड है दैट इज नोन एज स्पॉन्जस। स्पॉन्जस वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर और समवन मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स लाइक द मशरूम। तो ग्रीक वर्ड से ये आया है स्पॉन्जस वर्ड। जैसे कि बच्चों हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं हो या आप लोग हो, वी आर नोन एज बायोलॉजिस्ट और हम बायोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हैं। वैसे ही देयर इज ए स्टडी ऑफ मशरूम्स और स्टडी ऑफ हम उसे बोल सकते हैं फंजाई। फंजाई के बारे में अगर पढ़ना हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। ओके, तो व्हाट इज माइकोलॉजी अगर हम ब्रॉडली बोले, it is a branch of science which deals with the study, analysis, life cycle, behavior of every kind of fungus, that is called as mycology। जैसे जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं, जिनको बायोलॉजी फील्ड में इंटरेस्ट है उनको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। वैसे ही बच्चों अगर जिनको माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस में इंटरेस्ट है, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज माइकोलॉजिस्ट। तो ये जो बच्चों माइकोलॉजी वर्ड आया है, ये ग्रीक के दो वर्ड मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज माइकिस दैट मींस द मशरूम and the second one is logos that means discourse or study। so combinedly mycology means study of mushroom। अब जो लोग माइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर उसके ऊपर ज्यादा स्टडी करते हैं, उनको हम बोल सकते हैं माइकोलॉजिस्ट। अब देखेंगे कि ये जो फंगाई है ये कहाँ से आए और इनका शुरुआत, इनको एक अपना पहचान कैसे मिला, हम बोल सकते हैं because of a renowned person known as R.H. Whitaker। Okay, he is a renowned scientist who discovered the five kingdom classification। Okay, so here you can see about those five kingdoms: animals, plants, fungi, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। जैसे कि हमें पता है कि ऑलरेडी 4 किंगडम सॉर्ट आउट थे। ये जो बैक्टीरिया है इसको यूजुअली तुम लोग देखोगे मोनेरा किंगडम में। ओके, तो ऐसे 4 किंगडम पूरा सॉर्टेड थे। फिर क्यों फंजाई के लिए आर.एच. व्हिटेकर ने सोचा, वो लोग देखें कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं जो कि बिहेव कर रहे हैं एनिमल जैसा, बट दे आर नॉट कंप्लीटली एनिमल। तो उनको कहाँ पे रखे, इनका नेचर देखे वो लोग कि हेटेरोट्रॉफिक है जैसे कि एक एनिमल्स होते हैं। फिर देखे कि सारे एनिमल्स तो पैरासाइटिक नहीं होते, ये देखे कि कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट्स है। दे कैन ऑल्सो बी सैप्रोफाइट्स, जैसे कि हमें पता है सैप्रोफाइट्स मीन्स जो कि डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक स्पेशल
फील्ड और एक स्पेशल प्लेस तो बनता है। तो वहां वो क्या किए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को he kept under a classification system which is called five classification system, and he put a separate kingdom called as fungi. Okay, from then onwards it has been carried forward by keeping this kingdom classification, and it is the most acceptable classification system. Okay, so next हम देखते हैं कि इनका जो बॉडी है बच्चों, बिकॉज मैं बोली कि इनके पास थैलस है, जिसमें कि क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही स्टेम्स, ना लीव्स, ना रूट्स, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते। तो इनका जो थैलस है बच्चों, हम अगर बोलेंगे ये दो टाइप में डिवाइड होता है, एक है यूनिसेलुलर एंड और एक है फिलामेंटस। ओके, सो ये जो थैलस है उनका, हम बोल सकते हैं समटाइम्स who don't have any kind of stem, root, leaves, like that, not having any proper body, they are called as thallus। तो इसको हम क्या किसमें डिवाइड किए, एक डिवाइड किए ये लोग हो सकते हैं यूनिसेलुलर, और एक में डिवाइड कर सकते हैं ये लोग हो सकते हैं फिलामेंटस। unicellular means they only have single cells who can do all the functions, यही सेल में ही उनका सारा फंक्शंस कंप्लीट होगा। और फिलामेंटस बच्चों कैसे होते हैं, दे आर यूजुअली filamented like structure, more or less branched, and they are very highly developing structures। ओके, सो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज यूनिसेलुलर थैलस। सो देखो, ये जो थैलस होते हैं जिनके पास ओनली सिंगल सेल्स होता है, दे आर आवर लोअर फंजाइस, दे कैन बी कॉल्ड एज किट्रिड्स। ओके, सो ये बहुत ही लोअर ग्रुप के फंगस होते हैं जिनके पास ऐसे देख सकते हो पिक्चर में कि ओनली सिंगल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल सेल्स है बच्चों, ये क्या करते हैं, both the functions they can do। This structure can be used as vegetative one, and the same structure is again used for the reproductive portions also। So जब भी कोई एक फंगस दोनों काम कर सकता है, लाइक उनका बॉडी वेजिटेटिव भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है, उस फंगस को हम बोलते हैं होलोकार्पिक फंगस। यू कैन नोट डाउन दैट कि व्हाट इज अ होलोकार्पिक फंगस। व्हेन ए फंगल थैलस और ए फंगल सेल can be behaved as both vegetative and reproductive within that single cell, that kind of body or vegetative body is called as होलोकार्पिक थैलस और होलोकार्पिक बॉडी। तो यूजुअली इसमें क्या होता है, एक ही सेल जो कि सारा फंक्शंस कर लेता है। यूजुअली दे आर स्फेरिकल, एंड उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों एक याद रखना, ईस्ट। हम सबको पता है कि ब्रेड में ईस्ट पाउडर मिलाते हैं टू गेट दैट स्पॉन्जी टेक्सचर। इसमें क्या होता है, जब ईस्ट धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करके उसका नंबर इंक्रीज करता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका साइजेस डेवलप्ड होता है और वो स्वेल होता है, एक स्पॉन्जी टेक्सचर्स आता है। यूजुअली हम बोल सकते हैं बेकर्स ईस्ट बोलते हैं कुछ कुछ मेंबर्स ऑफ ईस्ट को, जिनको कि यूजुअली बेकिंग पर्पस में यूज करते हैं। तो ईस्ट एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इफ एनीवन नोस द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट, काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो और जो एक कॉमन एग्जांपल है जो कि ईस्ट जैसा ही है, दैट इज द ब्लास्टोक्लैडियला। वो भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड इट विल
actually look like east or they are also very similar looking east. तो ये दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है. अगर हम बोले कि there are some another forms or varieties of single cellular cell, here you can see there are multiple unicellular looking like structures or fungus are present here. Anyone can be confused it with yeast, but इसमें क्या different है? These all are the nucleus जो कि combinedly एक mucilaginous sheath में covered होके हैं. The first thing याद रखना, ये जो सारे दिख रहे हैं these are the nucleus and they don't have any cell wall. उनका कोई भी proper cell wall नहीं है. तो ये लोग एक साथ क्या है, एक जेली लाइक और एक वॉक्स लाइक मैट्रिक्स में जुड़े हुए हैं. दिस इज कॉल्ड म्यूसिलाजिनस शीथ. ओके, सो ये क्या है, एक कॉम्बाइंडली बहुत सारे न्यूक्लियस जिनके पास की सेल वॉल नहीं है वो एक कॉमन शीथ में अटैच्ड है और फर्दर दे कैन आल्सो डू रिप्रोडक्शन बाय डूइंग द स्पोर फॉर्मेशन. ये भी कॉम्बाइनली एक स्लाइम आप लोगों ने देखा होगा, एक स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर सोइंग. तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम because it is a structure here multiple naked nucleus has been present in a common protoplasm or a common mucilaginous sheath. ठीक है, तो ये भी एक यूनिसेलुलर और ये बहुत ही लोअर फंगाई का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम बोल सकते हैं. अगर हम फिलामेंटस थैलस के तरफ जाए, जैसे मैंने बोला था फिलामेंटस मीन्स इट विल शो ए मल्टीपल ब्रांच्ड और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. Completely it will look like the branches of tree which has multiple networks. Each of these networks इसको हम क्या बोल सकते हैं, it is called as hypha. Okay, सो मैक्सिमम फंगस के पास क्या होता है, ऐसे ही नेटवर्क और ब्रांच स्ट्रक्चर्स होता है और ऐसे फिलामेंट से वो बने हुए होते हैं. दोस फिलामेंट्स आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज हाइफे. अगर हम बोले कि ऐसे बहुत सारे हाइफेस आपस में कॉम्बाइंड हो गए हो, जुड़े हुए हो, उसको हम बोल सकते हैं दिस कॉमन थिंग और कॉमन मास इज कॉल्ड एज माइसेलियम. ओके, तो ये जो हमारा फंगस है तो इसको हम बोल सकते हैं कि each cells or each of these thread like structures is called as hyphae and when multiple hyphae are becoming overlap or tangled position they are called as mycelium. अगर हम ऐसे देखें कि ये जो फिलामेंटस थैलस है इसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक है सेप्टेड और एक है एसेप्टेड. तो अगर हम पहले सेप्टेड हाइफे देखें कि व्हाट इज अ सेप्टेड हाइफे, हम जैसे फिलामेंट्स देखे, एक फिलामेंट को और एक हाइफे को अगर मैं जूम करूं तो if somewhere I can see some cross walls or separating walls, these are called as septa or separating boundaries. Okay, so when a filamentous fungus have some segmented walls or segmented areas having single nucleuses in between it, they can be called as septa. Sometimes it can contain two or more nucleus. Eventually we will read about that. आगे पढ़ेंगे कि किस किस वैरायटी में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं. अभी के लिए इतना याद रखिए कि इंडिविजुअली अगर कोई भी ऐसे क्रॉस लाइंस दिख रहा है, बाउंड्रीज दिख रहा है, दोज आर कॉल्ड एज सेप्टा. अगर कहीं लिखा हुआ होगा कि सेप्टम, इट इज द सिंगुलर टर्म. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि ये जो सेप्टा के बीच में इधर दिख रहा है कुछ गैप्स है, ये गैप्स क्यों है बच्चों,
to do the transportation, because जैसे हम सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए एक रहता है प्लाज्मोडेस्माटा, हियर क्या होता है, सेल टू सेल और एक हाइफे का दो पार्टीशन के अंदर अगर ट्रांसफर करना हो तो हमें भी एक खाली जगह और एक खाली स्पेस चाहिए होगा, और दिस काइंड ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड एज सेप्टल पोर. Okay, usually every hyphase has some gaps, because of that both the cells can do the communication. Okay, next one. अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे भी फंगस है जिनके पास कुछ डिफरेंट टाइप के सेप्टम होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं मशरूम्स के, ओके, मशरूम का जो हाइफल स्ट्रक्चर है ये एक सिंपल हाइफा है और एक सिंपल हाइफल फोर है, बट मशरूम में क्या होता है बच्चों, ऐसे एक एक्स्ट्रा पोर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, एंड ये जैसा एक डोम शेप स्ट्रक्चर बना दिया, इस टाइप के पोर को हम बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम. क्या बोलते हैं, डॉलीपोर सेप्टम, एंड ये यूजुअली दिखाई देता है मशरूम्स में, जिसे कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटा. Okay, so what is dolichopore septum? When the hyphal pore is surrounded by a special barrel-shaped pore-like structure or cap-like structure, that is called as dolichopore septum. Here you can see also it is a covering, and between this food can be easily transmitted. Clear? So it can be called as our septal pore cap. ये यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, याद रखना, इन द मशरूम्स और बेसिडियोमाइकोटा. अगर हम बात करें कि जिसमें हाइफा के अंदर और हाइफा के बीच में कोई भी सेपरेशंस नहीं है, दैट मींस आवर बाउंड्रीज आर एब्सेंट, सेप्टा ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसेप्टेड हाइफे. तो इधर क्या होता है बच्चों, एक अगर हम हाइफा लिए तो इसमें कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे विदाउट एनी आउटर कवरिंग और विदाउट एनी पार्टीशन. तो इस टाइप के कंडीशंस को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, और क्या बोलते हैं, और सिनोसाइटिक कंडीशंस. So what is the difference between septate and aseptate hypha? सेप्टेट हाइफा में देखो ये सारा क्या है, सेप्टा है, जिसके बीच में पोर है जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन कर सकता है, but here there is no boundaries or walls, it is completely free and it is a multi-nucleate condition. Each nucleus are freely living in whole over the hyphal structures. So without hypha, this is the example of aseptate hyphae. So those fungus which do not have septa, they are called as aseptate fungi. Those fungus which contain the septa, they are called septate fungi. Okay, so for today's session, this is it. From the next session, I will carry forward about the general characteristics. Okay, according to your syllabus, it is a very important concept. सो इस क्लास में हमने देखा कि फंगस क्या है, फंगस का जो बॉडी है उसका जो थैलस है वो किस वे में डिवाइडेड है, एक फंगस किस किंगडम से पहली बार उसको एक पोजीशंस मिला था. ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. थैंक यू, कीप वॉचिंग.